So the topic is anger management. So let's just talk about, we all faces this in the corporate culture and family households problems. This is a daily life problem we all faces. So let's talk about it. And I would like if any one of you can give me just a brainstorm that what anger basically in their perception. If anyone would like to have one word, or anyone would like to have participate. Bilal said stress. Bilal, stress is a really different domain of that thing. Anger has nothing to do with the stress. Yes, it is the far away part of, you can say, this domain, but yes, it's not common. Yeah, Dini said जब बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो, तो that's actually the point where you see someone's trying to point out to you and you feel like this is something wrong. So that's what is anger is. And Khalid said unacceptable thing. Yes, that's great. That's a common problem. So let's work what anger is. So you all have, I'm seeing the responses from the participants. That see, I have 6 keywords. That is antagonism, intense fury, annoyance, displeasure, mild irritation, frustration. So that's all. That means that these are the trigger points of anger management. Muhammad Atif also said simply an irritation, which you have written already. Yes. Oh, yes. Yes, Sorry. yes. Sorry to interrupt. Okay, continue, please, Hamza. So that's basically the 6 points, and that these are the common ones. There are the 2 unique points will later that's come in slides, and I'll show you that how the first respondent Bilal said stress. Stress is a unique point of anger management. We'll see in the slides if we move forward. So let's talk about that how we can manage this thing, because this has a very positive and negative impacts of in our life. So just talk about how this could be done. So there are myths. There are general myths of anger management. Now one myth is I should hold in my anger. It's healthy to vent and let it out. That's a myth. Holding your anger can put you in some medical symptoms that is called pressure, stress, or you feel a kind of discomfort. So but the fact is true, but venting is no better. That's true that holding anger is good, but venting is no better, that you can put it out but in a positive way. Sometimes we go to the banks for a check clearing and say time nahi bajaye bhi. So that's venting out. Venting out means that you should put that myth into a fact that must reflect a positive answer. There must be no negativity in your words, in your actions. The second myth is I can't help myself. Anger isn't something you can control. Anger isn't something that you control. It is something that you control. But what the fact is, you must express your anger in a controlled manner. We have seen many examples in our lives, daily lives. When we saw a live reporter, they are doing a live reporting many incidents they face at the backside of camera, but when they come in front of us, their face is totally changed, their expression totally changed. That reflects that what they are expressing their anger in a controlled manner. You cannot judge them. You can only assess if someone is feeling discomfort from its facial expressions or from its actions. So this is the second myth. So the symptoms are biological and physiological. From these 2 myths, the theory says that anger can reflect you with the 2 manners, that is biological and psychological. So what this means, what are psychological symptoms? You get raised voice. We have seen that when a father gets angry, so he uses his raised voice to stop us from doing something he don't like. So right? Clenched fist, when we ourselves feel angry, so our clench get fists. We used to hold our hands like this, like if you're going to punch someone. These are psychological symptoms. We will start frowning, glaring, physical trembling. What does mean that we all have seen that when we are sitting in stress or in a state of like you can say discomfort, our legs start shivering like this.
So what does mean? This is physical trembling. You will feel you're facing in an triggering that shows that you are discomfort due to anger. Rapid heartbeats. We know that while we are playing cricket, we are playing hockey. If some team and if the second team goals, our heartbeat starts beating very fast because you're feeling anger inside your body that yes, how did this happen? I did my best, but then again this happens. So our heartbeat starts beating rapidly. We sweat excessively when we face an issue that is we don't like that, or there's a trigger point that we're facing towards an anger. Our body starts sweating excessively. Why? Because the hormones, they're getting more and more energy from our body to express ourselves that we are having a state of anger in our body. So the biological symptoms will be our energy level will be raised, blood pressure, body temperature, muscle tension. There will be a spike in hormones. If you know that sometimes if our result is not good or not as per our expectations, so our adrenaline level gets high. We get biological symptoms that is a state of anger. How it reflects it reflects that we are getting a trigger points. These are the other trigger points of common use of human body, that anger is in control. You can control this, but yes, these symptoms would help you that you are in the state of anger. Just talk about let's talk about what are the common myths and what are the common myths that how anger happens. But these commons are the emotions, these are not myths. Myths means that you can link with that. So just not just common grief or loss. We know that if we lose someone, our close one, our family members, and we used to talk to them, they feel like in a situation of I don't want to talk to you right now. Get out. This is grief or loss. If we feel like someone has lost his close ones or lost his belonging he loved, she loved, and he lost it, so it becomes a common cause of anger. Financial crisis. We all know that during in Pakistan or the world over, the inflation is on its peak, and everybody facing financial crisis, and they're getting worse and worse day by day. That's a trigger point and a cause of anger. They are facing what? When you go to ask for mom to just pay your cash for your pocket money, he says, I don't have right now, and you feel like it's an anger. What this means? This means that financial issues are the causes of anger. This is a trigger point that you can pinpoint it that yes, this is the issue. We all know that when our house get financial crisis, the family get disturbs at all. Why? Because it makes you in a situation where you can feel an anger. Family problems, we all know that there is a lot of family problems in everyone's house, some personal, some some sort of personal problems with family, with brothers, with sisters. So these are the causes. Verbal abuse. I would like if participants can just type their views on what verbal abuse could be in anger. If any participant would like to give me one word uh, answer what verbal abuse is in an anger. Yes, ma'am, right? By saying words which hurt emotionally. Yes, that's right answer. And so, ma'am, written saying which words which hurt emotionally and untrained memory. The word idiot as verbal abuse. Aisha has raised hands. Aisha, can you speak in a mic if you cannot write? Aisha, I think you've raised your hand. Can you speak on a mic, or if you would like to write on a message? So, Yes, Aisha. verbal. Aisha, I think Hamza, you continue. आयशा आएंगी तो फिर आई थिंक वर्बल अब्यूज, ये भी वर्बल अब्यूज है जब हम किसी को बड़े अच्छे से ये बता देते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, जब हमारे वर्ड्स हर्टफुल नहीं होते, बज़ाहिर नहीं होते, लेकिन हम लफ्ज उन लफ्जों से दूसरे को ये यकीन दिला देते हैं कि वो दैट पर्सन इज नॉट केपेबल,
you cannot do this thing or you are not enough. आई थिंक ये बात भी है। हम दूसरों को जब ये, मुझे लगता है ये वर्बल अब्यूज है, और इमोशनल अब्यूज में ये है कि जब हम ये बाय जेस्चर्स दूसरे को, बाय लुक्स हम ये बताते हैं कि यू आर नॉट इनफ, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, बगैर बोले भी हम लोगों को ये एक इंटेंशन, इमोशन ट्रांसफर करते हैं जिसके थ्रू हम बुरा फील करा देते हैं। मोहम्मद आतिफ साहब, थैंक यू। जी जी, हमजा आ जाए, आ जाए। Yes, ma'am. So the verbal abuse is when someone use a word that you don't feel like to be heard, such as an abusive language by father, by banker, or by anyone. इसका ये मीनिंग है कि कोई ऐसा लफ्ज जो कि हम सुनना पसंद नहीं करते, जो कि एक मुहज़्ज़ब माशरे के जो बीच में इस्तेमाल करने जाने लफ्ज नहीं है, उसको हम कहते हैं वर्बल abuse. बट नॉन वर्बल वो होता है that reflects from your action. जैसे आप कहीं बैंक गए हैं और या आप किसी शॉपकीपर गए हैं, आपने कहा जी कि मुझे ये चीज़ वापस, आई डोंट वांट टू यूज दिस थिंग, सो आप इसको रख लें, मुझे मेरा कैश दे दें। समटाइम वो शॉपकीपर या बैंकर्स लैंग्वेज यूज नहीं करते, दे यूज देयर एक्शंस जो कि नॉन वर्बल होते हैं कि ये बड़ी चीज़ हमने आपको नहीं करनी, वापस हमारी पॉलिसी नहीं है। तो उसका जो हाथ मारना है लाइक उसके डेस्क के ऊपर या चेयर के ऊपर, दैट इज नॉन वर्बल यूज। यूनिक कॉजेज ऑफ हमजा, एंगर, ये भी नॉन वर्बल अब्यूज में आता है, ये भी नॉन वर्बल अब्यूज में आता है जब हम ये करते हैं कि हम कहीं किसी ऑफिस में काम के लिए गए हैं और वहां जो भी कोई बैठा हुआ है वो आपको इस तरह से आपसे बात कर रहा है जैसे पता नहीं आप क्यों आ गए उसके पास, आपका काम करने के बजाय वो आप, ये भी नॉन वर्बल अब्यूज में आता है। बिल्कुल ये भी नॉन में आता है, बिल्कुल नॉन वर्बल में आता है। तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर इदारे में जो एक आम इंसान है वो नॉन वर्बली अब्यूज हो रहा है। So just talk about no unique causes. Bilal has written the first comment, stress. Stress is one of the unique causes of anger, depression. When you feel depressed, you're in a state of anger. You don't want to talk anyone. आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज आप उस वक्त मेंटल कंफर्टेबिलिटी में नहीं होते, आपका माइंड उस स्टेट में नहीं होता कि आप किसी से नॉर्मल स्टेट में बात करें। तो व्हाट दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डिप्रेशन भी एक कॉज है, बट ये यूनिक कॉज है, हर बंदा इसे फेस नहीं करता। समटाइम्स बहुत थोड़े बंदे हैं जो इस चीज से पास ना करते हैं, और आई होप कि कोई इस चीज से पास ना करे, बिकॉज ये बहुत ही एक लॉस्ट माइंड स्टेट होती है। और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जो कि एंगर का कॉज बनते हैं। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो कि मेंटली स्टेबल नहीं होते या कोई मेंटल उनको इशू होता है, सो दे फील लाइक कि वो हर वक्त एक गुस्से की स्टेट में होते हैं। सो आई हैव एन some examples. The one says, many people do in fact feel angry when someone we love dies, angry at being abandoned, angry at the extent of the pain, angry that our life is changed, angry that managing grief feels difficult, and angry that the world suddenly feels different, empty, and say lonely. We know that, as I mentioned, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, कोई हमारा क्लोज कोई रिश्तेदार कोई अगर कोई फोत होता है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, तो जब हम उस बंदे से जिसका फोत हुआ होता है उससे बात करते हैं, तो वो समटाइम एक स्टेट में होता है कि वो किससे बात करना चाहता है, वो फील करता है कि आई एम अनसेफ, मैं, मेरे लिए पूरी हर चीज सामने हो गई है, जिसे कहते हैं ना खुला आसमान। वो कहता है कि पहले मैं एक बॉक्स व्यू में था, अब मैं अनबॉक्सिंग के सामने आ गया हूँ, राइट। सो ये सेकेंडरी इमोशन है आपके एंगर का। तो नेक्स्ट इज अब्यूज, निग्लेक्ट और रिजेक्शन इन चाइल्डहुड कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। समटाइम होता है कि कहते हैं जी मेरा इस बच्चे से प्यार ज्यादा है, उससे कम है। आप बार बार ये रिपीटेटिवली बातें किसी एक बच्चे के सामने करें तो वो डिप्रेस्ड फील करता है, स्ट्रेस फील करता है कि पता नहीं मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मैंने कई फैमिलीज में खुद भी देखा है कि बहन भाइयों के अंदर डिफरेंस होता है, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उनकी जो ग्रूमिंग होती है, बिल्कुल मैम, जो कंपैरिजन होता है, पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन।
तो उसमें क्या होता है कि वो जो जिसका कंपेरिजन आप करते हैं और जिसको आप निगलेक्ट करते हैं, वो एक सेकेंडरी स्टेट में होता है कि उसमें गुस्सा होता है कि वाई मी, हर दफा मैं ही क्यों। हम देखते हैं कि समटाइम पेरेंट्स या फादर जो है वो अपने बच्चों को फैमिली के सामने डांटते हैं या वो करते हैं गुस्सा। आप इस चीज को अगर आप दीन का एक साइड पे रखें, बट अगर आप इसको सोशल लाइफ में देखें तो ये बड़ी बुरी चीज है। दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। आप एक बच्चे को सेपरेटली भी लेके जाके घर जाके उसको डांट सकते हैं, बट अगर आप उसको 10 बंदों में डांट रहे हैं तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। वो फील करेगा कि पता नहीं मेरे फादर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। समटाइम मैंने खुद सुना है लोगों को और उन बच्चों को, यार मेरे फादर ना 10 लोग मेरी बिस्सी करते हैं तो आई फील लाइक कि मेरी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं भी फिर नेक्स्ट मैं भी उनको इस तरह ही ट्रीट ट्रीट करूंगा। आप क्या करते हैं, आप बच्चों को अपने अगेंस्ट करते हैं सिर्फ इस चीज से कि आप उनकी बिस्सी करते हैं 10 लोगों में बैठ के। सो जस्ट स्टॉप डूइंग इट। आप एक सेपरेट रूम उनको बैठाएं, उनको समझाएं और बताएं। अच्छा, यू रेज योर हैंड्स, कैन यू, if you would like to speak on a mic or you want to write? Hamza, she is facing an issue with the audio. That is why she's raising hand and Okay. calling it. Don't worry. You just continue. Okay. Okay. So we just need to stop this thing. हमें पेरेंट्स को भी इस मामले में समझाना है कि ठीक है जी, एक बच्चे ने मिस्टेक की है, बजाय कि आप 10,000 बंदे के सामने उसको बिस्त करें या आप उसकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप कोई उसको डांटें। बेहतर ये है कि आप उसको सेपरेट रूम में लेके जाएं, उसको समझाएं। और अगर आप काम कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं तो बॉस की जिम्मेदारी बनती है कि आपको सेपरेटली समझाए, बजाय कि बाकी एम्प्लॉयज के सामने आपको वो लैंग्वेज यूज करे जो आप सुनना नहीं चाहते। वो क्या होता है कि जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं उनको चांस मिलता है कि उनको पता होता है कि भाई इसकी बॉस रोज बिस्ती करता है, इस हम भी बिस्ती करेंगे, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे एक पोजीशन बनी हुई है दैट इज नॉट गुड। सो अल्टीमेटली हमने लोगों को उस स्टेट से बाहर लेके आना है, ना कि उस स्टेट में फेंकना है। सो इस चीज के ऊपर हमें बहुत काम करना है, हमें मैनेज करना है कि हम किस तरह अपने इन सोशल नॉर्म्स को एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके आए, ना कि नेगेटिव के अंदर। Zia बेसिकली has raised hand, Hamza. ये वो चीजें हैं जो सोशल नॉर्म्स और कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर चल रही हैं। जिया, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, असल में ये हमारे इज्तिमाई तौर पर ये मसाइल का सामना है। हमें सबसे पहले वालदैन की जो है वो उनको मोटिवेट करना होगा। इस मतलब हमें ऐसा प्रोग्राम शुरू करना होगा जिसमें हम वालदैन को मोटिवेट कर सकें कि वो बच्चे को मेंटली स्ट्रेस से बचाएं। ये जब बच्चा मेंटली तौर पे अपसेट रहेगा तो फिर वो किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये फैमिली के लिए पेरेंट्स हैं और जो आपका जॉब कल्चर है उसके लिए आपके बॉसेस हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एंड आई एम ट्रेनिंग मैंने रियोन बॉसेस ऑफ फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें हायर है, आई हैव ट्रेन्ड देम ऑन दिस। और जो बेसिक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बॉसेस भी, और वो कहते हैं कि जी ये हमारी बात नहीं मानते। सो हमें उस ट्रिगर पॉइंट के ऊपर काम करना है कि वो बात क्यों नहीं मानते। ये नहीं करना कि बात मनवानी है, उस पर फोकस करना है कि वो बात क्यों नहीं मान रहे। उस क्यों को हमने हाँ में लेके आना। ये नहीं करना कि उस क्यों को क्यों में लेके बैठे रहे। सो फैमिली में पेरेंट्स, लेकिन अगर आप जॉब उसमें कल्चर में तो आपके बॉसेस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि हम इस स्टेट ऑफ एंगर को किस तरह यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। हाउ वी कैन यूज दिस टू आवर एडवांटेज। गुस्सा हमें ड्राइव करता है टू आवर गोल्स। आई एम वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। और जब मैं खेल रहा होता हूँ तो जो मेरे साथ सेकंड टीम खेलती है या जो मेरा पार्टनर सेकंड खेलता है, अगर वो की अच्छा स्कोर करता है या अगर टीम अच्छी खेलती है, मुझे आता है गुस्सा करनी, यार मैंने इससे अच्छा खेलना है। वो हमें हमारे गोल्स की तरफ मतलब लेके जाती है, टुवर्ड आवर गोल्स, कि यार नहीं, गुस्से को यूज करो इन पॉजिटिव वे कि अच्छा अगर इसने मेरे से बेहतर खेला, नेक्स्ट टाइम मैंने से बेहतर खेलना है। सो वी हैव टू यूज दिस स्टेट इन पॉजिटिव वे। उसको नेगेटिव नहीं करना कि उसको मार दो, उसको ये कर दो। नो, कम आउट ऑफ दिस मिथ्स, कम आउट ऑफ दिस सोशल नॉर्म्स कि यार इसने ये किया मैंने भी इसका यही करना। नहीं, आप यूज करो कि आप खुद को प्रूव करो उससे बेहतर बाय थ्रू योर रिजल्ट्स, थ्रू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आप करते हैं गुस्सा।
सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी। असल में हम अप्रिशिएट नहीं करते जी ना जी। लोगों को, जो अच्छा काम करता है हम उसको ये नहीं कहते कि आपने ये अच्छा काम किया है। तो जब हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर हमें उसका मुस्बत रिजल्ट नजर नहीं आता। मुस्बत रिजल्ट निकालने के लिए हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना होगा जो अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छा नहीं आप करते बिल उन्हें भी इस आप ट्रैक पे लाना होगा कि थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करके हम उनको भी इस ट्रैक पे लेके आए कि वो भी हम हमारे मुताबिक काम करने वाले बने। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बट जब जॉब में क्या होता है, जॉब का कल्चर है, फैमिली कल्चर, मैंने बहुत दफा सुना और मैंने इस चीज के ऊपर काफी रिसर्च भी की है कि पेरेंट्स कहते हैं अगर हम बच्चे के सामने ये कहेंगे ना कि यार तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो नेक्स्ट टाइम वो लूज हो जाएगा, पैशन छोड़ देगा, यार मैं सही कर रहा हूँ तो अब मेरा काम ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फोकस काम करूंगा। सो वो क्या कहते हैं कि अगर हम बच्चे को थोड़ा बहुत डांटते हैं या उसको अप्रिशिएट नहीं करते, इसके मीनिंग ये है कि वो अपने ट्रैक से डी ट्रैक ना हो जाए। और यही जॉब का कल्चर है, यही बॉस कल्चर है जो हमारे पाकिस्तान में स्टेट कल्चर है कि यार अगर हम अपने जो बंदे हमारे काम कर रहे हैं, हम अगर शाबाश देंगे तो ये काम उस इंटेंसिटी से, उस प्रोडक्टिविटी से नहीं करेंगे। अगर हमको डांटते रहेंगे तो ये काम प्रॉपर अपनी प्रोडक्टिविटी से करेंगे, जो एक मिथ्स है। हमें इस चीज के हमजा, ऊपर, हम बिकॉज हमारा कोई नॉलेज नहीं है, हम लोग रिसर्च नहीं पढ़ते। हमजा बेटा, जी मैम। मुझे ये बात समझनी है कि ये जो बिलीफ है, ये वाला, ये मिथ आप बता रहे हो कि ये कल्चर है कि हमने अप्रिशिएट नहीं करना तो हम मैक्सिमम दूसरे से लेंगे। आई एग्री विद यू, 100% एग्री विद यू। दिस इज अ कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के मेक अदर फील लो, इतना दूसरे को छोटा फील कराएं और खुद इतना एलिटेड फील करें। ये बहुत ज्यादा ऑल ओवर पाकिस्तान ये चीज जो है ना, ये है। जी तो मैम। क्यों क्यों ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये क्यों है, या लोग ये करना क्यों पसंद करते हैं? मैम देखिए, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, इसके पीछे एक थियरी है सारी। अगर आप हार्वर्ड बिजनेस की रिसर्च देखें तो वो ये कहती है कि जो साउथ एशिया का कल्चर है ना, यहाँ पे एक सोशल क्लास डिफरेंस बना दिया गया लोगों ने खुद। अब वो सोशल क्लास के अंदर सेग्रीगेशन हैं, डिफरेंट सेग्रीगेशन है। वो सेग्रीगेशन उन्होंने क्यों की है, आप देखें कि इसकी मैं थोड़ा मैं डिटेल जा रहा हूँ। ब्रांडिंग जो है, ब्रांड है, अगर आप किसी भी शॉप के ऊपर से उसका ब्रांड नेम रिमूव कर दें और कपड़ा वैसे रख दें, क्या आप कोई बंदा भी उस शॉप पे जाकर बाइक बाइक करे और वो पहन लेगा, तो क्या आपको फील होगा कि इसने इस ब्रांड से पहना है? नहीं फील होगा। वाई नहीं वुड डू होगा। ब्रांडिंग? वाई वुड डू ब्रांडिंग? हम ब्रांड करते हैं कि फील हो जी मैंने सफायर का सूट पहना है आज। So, हमने सोशल सेग्रीगेशन खुद की हुई है। ओह माय गॉड, वाह भाई वाह, वेरी नाइस, नाइसली एलेबोरेटेड। थैंक यू हमजा, आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। थैंक यू हमने वेरी मच। हमने सोशल सेग्रीगेशन खुद की हुई है। आप अगर एक पठान से शर्ट लेके पहनेंगे तो वो शर्ट ही है भाई, वही शर्ट वही कपड़ा। अगर आप ब्रांड के शॉप में पहनेंगे तो आपका जो कहते हैं ना, वो जो बॉडी का स्टाइल है वॉक करने में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन लोगों ने खुद की हुई है, ये किसी ने तैयार नहीं की हुई। सो वी नीड टू जस्ट पुल आउट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस सोशल क्लास सिस्टम। हमें इस ब्रांडिंग वाली चीज से बाहर नहीं निकलना है। ओके, सो दैट तो इज बेसिकली टू फील एंगर, बेटर है ना, कि हम लोग किस चीज टू को फील। मैनेज करते हैं। सो जस्ट टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, एंगर एनर्जाइज अस एंड मोटिवेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप देखते हैं स्पोर्ट्स में ना, मैच देखते हैं, कोई आउट होता है किसी टीम का, तो कोई उसे आउट करता है, तो जो नेक्स्ट टीम है जिसकी बैटिंग होती है वो कहती है नहीं यार, अब जो है ना, अब मैंने इसको प्रॉपर जो है ना वो लेके आना है। कैसे लेके आना है? वो दैट टॉक अबाउट समथिंग कि जो मेरे और आपके बीच में नहीं है। व्हाट इज दैट? वो है एंगर। वो क्या करता है, वो उसको मोटिवेट करता है दैट दैट पर्सन शुड शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स गोल्स। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक बंदा अच्छा नहीं खेल रहा, मैं उसकी आपको यूं देता हूँ कि कैप्टन हमेशा फ्रंट से लीड करता है टीम को। अगर आप देखें कि अच्छा प्लेयर टीम का आउट हो जाए तो पूरी टीम की लाइन लग जाती है। अगर वही टीम के अंदर उस स्टेट को वो अच्छे तरीके से यूज करे, तो वो किस तरह यूज कर सकता है कि वो उस स्टेट को पॉजिटिवली यूज करे। कैप्टन आउट हो गया, डजंट मैटर, हम लोग भी उसी कैपेबिलिटी के लोग हैं, हम लोग उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम लोग अपने जो एंगर है, गुस्सा, उसको इस तरह वेंट करें, उसको
अच्छे तरीके से आउट करें ताकि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। अगर आप देखें तो समटाइम हम लोग खुद फील करते हैं यार मैंने क्या किया, ये क्यों क्यों किया आपने ये, बिकॉज आप खुद फील करते हैं कि दैट यस यू कैन डू दिस, बट उस स्टेट में आप नहीं कर रहे थे, आपने नेगेटिवली किया। हम देखते समटाइम हम लोग बड़ा फील करते हैं, वी लाइक फील लाइक यार अगर ये मैं ना बोलता शायद आज मेरा काम बन जाता। दैट मीन्स कि हम लोगों को अपने एंगर को पॉजिटिव स्टेट में यूज करना है। सो हाउ वी कैन Okay. Okay. manage the what techniques we can use to manage our anger. Think before you speak, ये तो आपका दीन भी कहता है कि बोलने से पहले सोचो। एक दफा लफ्ज आपकी जुबान से निकल गया तो वो वापस नहीं आता। जैसे तीर कमान से निकला हुआ तीर ना कभी आता वापस, इसलिए आपकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आता। आप किसी बंदे के दिल के अंदर जाके नहीं देखते कि बंदा कैसा है, आप उसको उसकी गुफ्तगू से गैस करते हैं कि बंदा कैसा है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। आप बोलने से पहले सोचें कि मैंने बात क्या करनी है, मेरे लफ्जों का चुनाव क्या होगा, वट वर्ड्स आई हैव टू सिलेक्ट टू स्पीक। आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वहां पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स चेंज होगा, घर में चेंज होगा। आपने किसी बॉस को मेल लिखनी है तो वो आपका वर्ड सिलेक्शन चेंज होगा। आपने किसी दोस्त को मेल लिखनी है दैट इज समथिंग एल्स। आपने किसी अपने दोस्त को मैसेज लिखना है तो वो टोन चेंज होगी। फादर उठे तो वो टोन चेंज होगी। सो दैट थिंक बिफोर यू स्पीक। अपने लफ्जों का जो चुनाव है ना वो इस तरह रखें कि दैट रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट, कि आप उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं। कभी किसी के बारे में ग्रज ना रखें, बुक्स कभी ना रखें। डोंट जी यू रेज योर हैंड। जी सर, असल में ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारा जो बाहर रवैया होता है वो और होता है और घर में जो रवैया होता है वो और होता है। तो जब दोनों में तजाद होगा तो हम फिर किसी तरफ भी नहीं जा पाएंगे। बाहर हम अपने आप को बहुत बेस्ट साबित करने पे तुले होते हैं, जबकि जो ही हम घर का दरवाजा क्रॉस करते हैं तो हमारे अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। हमारे तबीयत के अंदर जिस तरह समझ दें कि गुस्सा आना शुरू हो जाता है और इस तरह की मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। जब दोनों चीजों में एतदाल नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखें आपको ना इसको थोड़ा सेग्रीगेट करना है। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों के सोशल कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज डिफरेंट है। गुस्से का चेंज घर में आने से और बाहर से थोड़ा बहुत लिंक है, उसका एक लिंक बनता है। कैसे बनता है कि आप एक जगह बैठे हुए हैं जहाँ आप सीईओ हैं और वहां पे आपसे डिफरेंट लोगों ने आके मिलना है और आप उनसे बात कर रहे हैं, इन मीटिंग, फिर आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको डील फाइनलाइज करनी है। डील के लिए आपका बिहेवियर जो होगा ना, आपके वर्ड्स, आपका चुनाव, आपकी मीटिंग्स में आपका एटीट्यूड चेंज होगा। बट अब घर जब आते हैं तो वो घर का कल्चर डिफरेंट है। आप घर में बॉस तो नहीं बन सकते ना, घर के अंदर आप भाई भी हैं, आप बाप भी हैं, आप बेटे भी हैं। सो आपको उन तीनों सेगमेंट्स को आपने एडजस्ट करना है। अब एक बाप अगर घर आता है तो उसके बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसको वो डांटेगा ही ना, उसको प्यार से वो एक दफा कहेगा, दो दफा कहेगा, थर्ड टाइम ही स्पीक आउट विद रेज वॉइस। ठीक है, अगर आप एक माँ है वो अपने बेटे को कहती है बेटा घर आ गए हो, खाना खा रहे हो, सो वो एक कल्चर ही चेंज है। सो दिस डिफरेंस होगा बिकॉज वो कल्चरल डिफरेंस जो एक सोशल का है बना हुआ है दैट विल रिमेन देयर। घर का कल्चर चेंज है, आप घर के अंदर बॉस नहीं बन सकते। आप डोमिनेंट एक हद तक होते हैं, बाप डोमिनेंट होता है, बेटा कभी डोमिनेंट नहीं होता। माँ हमेशा डोमिनेंट रोल पे होती है जब आपको बेटे को डिफेंड कर रही होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बनता है। हाँ, अगर आप कहते हैं ना कि इस स्टेट को आप मैनेज करना, आपने गुस्से की स्टेट को, यस दैट इट इज इन योर कंट्रोल, उसको आप अच्छे तरीके से वेंट आउट करें, निकालें ताकि आपका मैसेज जाए, बजाय कि जो अगला बंदा है वो आपसे कहे कि यार पता नहीं क्या बात कर रहा है, मेरी समझ से बाहर है, मैं देख लूंगा। एक कान सुना दूसरे कान से बाहर। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट, यू नीड टू एडजस्ट योर सेल्फ एज पर द norms and values of the culture and place. So just move forward. That is, once you are calm, express your concerns. बिलाल वाली बात आ गई कि जब आप काम हो जाएं, आप घर आए, बैठे हैं, पानी पिए, नहाए धोए, फ्रेश होए, तो आपका जो स्ट्रेस है वो ऑलरेडी काम डाउन हो चुका होगा। जो आप उस स्टेट में थे ना, दैट इज गुस्सा, उससे आप नीचे आ चुके होंगे। फिर आप बात करें, कंसर्न समझे। हमेशा कहा था है कभी गुस्से में फैसला ना करें। क्यों कहा जाता है? बिकॉज गुस्से में किया फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप बैठें, अपने आप को काम डाउन करें, जस्ट हैव अ रेस्ट, हैव अ नैप, पानी पिए और फिर
किसी तरफ जाएं, गुस्से का फैसला कभी नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द थिंग कि आप इस टेक्निक को यूज करें टू मैनेज योर एंगर। फिर आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस, कभी भी किसी एक फैसले पे फंस ना जाएं। आप यार ये नहीं तो ये, प्लान ए नहीं प्लान बी नहीं प्लान सी नहीं प्लान डी। सो यू हैव टू सॉर्ट आउट द सॉल्यूशंस। अब मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और वो बच्चा कंटिन्यूसली जो है ना वो अच्छा, मतलब उसकी जो क्वालिटी मुझे शो नहीं हो रही। सो मैंने इसके लिए प्लान बी प्लान सी तैयार किया कि किसी एक प्लान पे तो वो मेरे काम करेगा, और फाइनली वो प्लान सी पे काम किया। तो मैं अगर अपने प्लान ए पे स्टिक होता तो मेरा शायद जो ये स्टेट थी, इस स्टेट में मेरा जो स्टेट था वो शायद मेरा बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि मैं अपने प्लान पे स्टिक था। आई नीड टू चेंज माई प्लान्स। मैं तब ही अपने गुस्से को मैनेज कर सकूंगा अगर मेरे पास डिफरेंट प्लान्स होंगे। सो आई नीड टू वर्क ऑन इट। उसके लिए मुझे डिफरेंट सॉर्ट्स के लिए देखना पड़ेगा। ये नहीं तो ये प्लान के साथ आप काम करते हैं ना। आज आप सफर कर रहे हैं, मैं उसको जाना नहीं चाह रहा, आपकी जो पॉलिटिक्स है कि प्लान ए प्लान बी है ही नहीं, सिर्फ प्लान ए ही है। दैट इज कि आप लोगों को अपने गुस्से की स्टेट को मैनेज के लिए सॉल्यूशंस चाहिए डिफरेंट, ताकि किसी एक के ऊपर जब काम करो तो इट मस्ट रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योर एंगर। यूज ह्यूमर टू रिलीज टेंशन। हम लोग देखते हैं अक्सर लोग समझते हैं बड़ी एक जो स्टेट ड्रामे हैं, मैं बहुत लोगों के पास क्यों जो स्टेट ड्रामे देखते हैं पूछता हूँ यार मैं क्या क्यों देखते हैं, मतलब उसमें लैंग्वेज ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं होते उनके, दे यूज वेरी अनअप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस। कहते हैं यार हम लोग अपना टेंशन अपनी स्ट्रेस रिलीज करते हैं। मैं कहा स्ट्रेस तो ठीक है लेकिन आप बाहर आके तो कहते नहीं, हमारा गुस्सा भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं हंसी को खुशी को, जिसको आफ्ताब इकबाल ने बड़ा अच्छा और एक बड़ा मुहज़्ज़ब रंग दिया था कि वो एक प्राइम टाइम के ऊपर शो करते थे। जब आप घर आते हैं, खाना खाते हैं फ्रॉम योर जॉब, तो आप उस टाइम को वो शो देखें तो आप देखें आपकी हंसी से वो चीज़ कम हो जाती थी। मैंने खुद इसको प्रैक्टिकली मैंने इसको खुद नोटिस भी किया अपने ऊपर, इस चीज़ को मैंने आजमाया अपने ऊपर। तो दैट इज कि आप या तो खुद इतने जॉली हों या लोगों को जोक करें कि आप उस स्टेट को कम कर लें, या आप ह्यूमर देखें ताकि आपका वो स्टेट है वो कम हो सके। यू कैन आप उस टेक्निक को यूज करें ताकि आपके अंदर जो एक एंगर का स्टेट है ना वो हो सके अप टू दैट लेवल जहाँ पे आप कोई फैसला कर सकें, किसी से कोई बात कर सकें, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर चीज को लेके आ सकें। क्यों? बिकॉज गुस्से के अंदर बहुत चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे अब एक योगा टेक्निक्स बहुत अच्छी होती हैं कि अपने डीप ब्रेथ्स लें, आप अपने मसल्स को रिलैक्स करें, थॉट्स को रिलैक्स करें। कुछ लोग कहते हैं आप सॉन्ग सुने, कुछ लोग कहते हैं आप बेसिकली जो आपकी दीन की बुक्स हैं उनको पढ़ें ताकि आपको I think Miss Asiya Sabi Saab is here as well. ठीक है सभी साहब आ जाए आप। Yes. जी अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। वेलकम। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हमजा एक्सप्लेन कर रहे हैं और उनसे क्वेश्चंस वगैरह भी हो रहे हैं इस सिलसिले में। मेरा इसमें कुछ थोड़ा सा अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कि जो हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट, दिस मीन्स के हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज एंगर बेसिकली। अब इसमें जो है कॉजेस तो हमने काफी इसमें देखे, जैसे इसमें द थिंग्स विच ट्रिगर एंगर लाइक हमने बात की थी, स्ट्रेस की है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ की हो सकती हैं कंडीशन, इसी तरह कुछ लोग अच्छे अपने मुताबिक नहीं मिलते, इंटरेक्शन विद पीपल जो अपनी मर्जी के मुताबिक लोग नहीं बात करते, या कुछ सर्कमस्टांसेस, इवन सेल्फिश मोटिव भी हो सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बंदे जो हैं वो लड़ाइयां करते हैं। आप देखें हमारी पार्लियामेंट से, हमारी क्या दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर आप देख लें कि वो कुर्सियां चलती हैं, एक दूसरे को वो एंगर में आ जाती हैं और सारा कुछ है। सो ये अपनी जगह पर है। तो मेरा जो अपने तौर पे मानना है वो ये है कि दुनिया में ठंडे मिजाज के लोग भी होते हैं और गर्म मिजाज के लोग भी होते हैं, और इसमें उनकी जो अपने इन एडिशन टू द जेनेटिक कंडीशंस, उनकी डाइट का, उनकी यानी जो खुराक वो खाते हैं, कई गोश्त ज्यादा खाते हैं, कई गोश्त नहीं खाते, हिंदू वगैरह तो सब्जियों पे, डाइट का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का,
इसी तरह लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो योगा की भी बात की, जो नहीं करते हैं। कुछ चाइल्डहुड की ट्रेनिंग है, एथिक्स है, डिसिप्लिन वगैरह जो ये कुछ सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये चीजें जो है बेसिकली ये एक पिवटल रोल अदा करती हैं हमेशा इन चीजों में, जो कि गुस्सा लोगों को दिलाती हैं। और फिर ये एक ट्रेंड या जो ऐसी बात हुई थी कल्चर, और ये कल्चर बनाने में कौन होते हैं? वी आर द वंस हु मेक कल्चर। एक टीचर है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के क्लास में उसके स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपना एंगर शो नहीं करेंगे या और कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे। सभी साहब, मैं तो आपकी बात में मैं भी बात ऐड करना चाहती हूँ कि एक टीचर अगर डिसिप्लिन्ड है और वो अच्छे से काम कर रहा है तो भी इस तरह का एक एनवायरनमेंट इस तरह का है मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें उसको ये फील करा दिया जाता है कि अगर आप पसंद नहीं है तो आप चाहे डिसिप्लिन्ड हो, आप चाहे जो मर्जी हो, आपको जो है ना, मतलब एंगर ट्रांसफर करने के देयर आर सो मेनी वेज कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपने दूसरों से अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी एक चीज है जो मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, हमजा भी आ गए अभी, हमजा ने लिखा हुआ है माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। इस पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो लफ्ज माइंड है, मुझे लगता है ये मेन कल्प्रेट है। हर बंदा अगर अपने माइंड को ट्रेंड करे ना, जो आपने जितनी चीजें बताई हैं, हमजा ने जितने गाइड किए हैं, अगर हम माइंड को लेके चलें और ट्रेन करें ना, तो फिर हम उसके ऊपर फौरन रिएक्शन देना या फौरन लड़ना या फौरन कुर्सियां मारने के बजाय हम उसी में से बेटर ऑप्शन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखे ना, उसकी जीती जागती मिसाल है। एक फोरम के अंदर मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा जब ये फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, और जिस एनक्लोजर के अंदर जापानीज को जाकर बिठाया गया था, वहां पे एक साइड के ऊपर सारा कूड़ा करकट और वो पड़ा था, उनके बेंच भी साफ नहीं थे, जो चेयर्स वगैरह, एंड दे वर द वंस, जितने के सारी दुनिया के इसमें इंक्लोजर जापानीज, उन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्सियां बेंच वो सारे साफ किए। इंस्टेड दे कुड हैव गॉट रूड, गुस्से में आ सकते थे, एंगर आ सकता, फ्लेयर अप हो सकते थे कि जी ये मैच है, ये इट्स नॉट नन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोगों का काम है। लेकिन नहीं, बड़े तहम्मुल से उन्होंने आराम से ये सारे काम किए। तो इसमें आप वाली बात है कि वो जो ब्रेन का और वो जो सारी उनकी अपब्रिंगिंग हुई भी है, दैट ऑल्सो मैटर्स फॉर उसकी ट्रेनिंग का असर होता है। यू आर राइटली राइट। सर वो लड़ भी तो सकते थे सभी साहब के, वो कहते हैं कि हमारे को फर्क पड़ गया, हमारे आपने इतना खराब जगह दी है, इस पे झगड़ा करते हैं या उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, दो ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तो वो ये आपके लिए बात ही है ना कि इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये एज अ फॉर्म कल्चर एक डेवलप होना चाहिए। आप ट्रेन के अंदर देख लें कि एक ही बात होती है, सारे लोग बैठे होते हैं, कई फ्लेयर अप हो जाते हैं और कई उस बात को बड़ा पेशेंटली सुनते हैं और कोई एक एमिकेबल उसका सोल्यूशन निकालते हैं एक ही बात के ऊपर। तो हाँ, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। आपने बिल्कुल सही फरमाया। थैंक यू सभी साहब। थैंक यू। हमजा आ गए। हमजा जी। So the presentation is going to end. So I would like to ask if any questions from people want to ask any question, any query. So it would be welcomed. हमजा, मुझे ये समझ आया कि anger is something when you find reason that this happened due to this, your mind finds some reasons to blame some other person or place, और यानी आपका जो दिमाग है वो आपको यकीन दिला देता है कि ये इसकी वजह से, और फिर जब वो यकीन दिला देता है तो उसके बाद फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमें जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स है ना वो पता लग जाए तो वी कैन वर्क ऑन इट, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। यही चीज आप स्ट्रेस के अंदर भी है, वो स्ट्रेस एक बहुत सेपरेट टॉपिक है स्ट्रेस का। जी ये आप मुझे बताइए कि ट्रिगर पॉइंट जो है ये एक आम बंदे को कैसे समझ आए कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, या उसको पता होता है, या वो उससे काम नहीं करना चाहता, या वो उसके नीचे उसको बिल्कुल पता होता है, पता होता है उसको बिल्कुल पता होता है। आप देखें ना, अगर मैं हूं तो मुझे कोई चीज सामने गलत होती नजर आ रही है, लेकिन उसको वो जो 10 लोग खड़े हैं वो कह रहे नहीं सही है, और वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि मैं कोई चीज गलत होती भी देख रहा हूँ, बट मैं उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं
क्या कर सकते हो, कुछ कह नहीं सकते, वो ट्रिगर पॉइंट है मेरा, मुझे उसको मैनेज करना है। अगर मैं सीईओ से बैठा हूँ, हमजा ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने लिखा है, मोहम्मद आतिफ यासीन साहब ने। कैन यू प्लीज टेल अस इन वन वर्ड हाउ एंगर इज क्रिएटेड? वो हमजा आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बता दें कि एंगर कैसे तो क्रिएट होता है। the अभी one word is mental stability. mental stability. Okay, so we need to work on our mental stability. Yes. Okay, so हमजा आपका इतना वंडरफुल सेशन था, इट्स ऑनर टू हैव यू। और अच्छा जी, मोहम्मद आतिफ यासीन साहब के माइंड में था पीस। सर पीस नहीं हो सकता ना, देखें हाँ, एंगर को आपको ट्रिगर करना है, अगर आप पीस ट्रिगर कर रहे हैं तो फिर वो कोई बात नहीं बनती। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। ओके, तो हमजा आप हमें कोई एक की टेक अवे आज के सेशन का एक दे दें और फिर हम सेशन खत्म करेंगे। जी हमजा। मैम जो की है टेक अवे वो ये है कि वर्क ऑन योर ट्रिगर पॉइंट्स एंड ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल इन द डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर्स और फैमिली कल्चर्स, बिकॉज जो गुस्सा आपको कहीं फील होता है, क्या पता नेक्स्ट बंदे को फील ना होता हो। So you have to adjust yourself and manage yourself as per the corporate culture or per the family culture. But yes, उसको manage करना है in a good way that reflects your personality and grooming. It must reflect your training you get from your family. ठीक है हमजा, ये आपकी एक लाइन में मैंने नोट की कि आपने कहा कि यू नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज, यू नीड टू फाइंड सो मेनी अल्टरनेटिव्स। Yes, तो ma'am. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पॉइंट कि ये अल्टरनेटिव, ज्यादा सारे अल्टरनेटिव इंसान कैसे ढूंढ लेता है, कैसे हम क्या डेवलप करें अपने अंदर के हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकें। मैम अगर आप थोड़ा अपने दीन से लिंक करें ना, दीन से लिंक करें तो जितनी भी जंगें हुई हैं आपकी, आप सल्लम ने हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखा। ओह यस, फ्लेक्सिबिलिटी। यस। गनवा का क्वेश्चन है, गनवा फातिमा। श्योर, यस मैम, श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैम एंगर के बारे में मेरा एक क्वेश्चन भी है और थोड़ी सी ओपिनियन भी है, मे बी आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। कि मैं पहले जब स्टूडेंट लाइफ में तो ऑब्वियसली बंदा इतनी चीज़ें फेस नहीं करता, लेकिन जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आया है, टीचिंग की जॉब में आई हूँ, फिर हेडशिप पे आई हूँ मैं, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने अपने कोलीग से सीखी, अपने स्टाफ से सीखी। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, माशाल्लाह से आप पेशेंस काफ़ी आ गया है फेस कर करके चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा सब्र आ गया। लेकिन अभी भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हम किसी को अपना वीक पॉइंट दे देते हैं तो वो लोग उसको पकड़ के फिर आपको ना ट्रिगर करते हैं, फिर आप में एंगर को डिवेलप करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा तो सारा हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऑब्वियसली बंदे को गुस्सा आ जाता है, बंदा फिर उसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स भी दे देता है और ऑब्वियसली वो फिर जैसा उनका आगे से बिहेवियर होता है उसी तरह का रिस्पॉन्स देता है। हालांकि एक हेडशिप पे होते हुए कई दफ़ा इग्नोर करते हैं, 100 में से अगर सर 99% बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन 1% पे गुस्सा शो कर देता है, तो वो ना हर कोई फितरत पे पीछे वाली चीज़ों को भूल जाता है, फिर उसी बात को पकड़ लेता है। अब इसको मैंने ओवरकम भी किया है, लेकिन अभी भी कभी कभार ये चीज़ फिर भी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ मैं बिल्कुल 100% इसको कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। ऑब्वियसली हो तो नहीं सकता, लेकिन कभी कभी इंसान है गुस्सा आ भी जाता है। जी हमजा, क्वेश्चन फॉर यू। यस, तो मैम इसका जो वन लाइनर मैं आंसर दूंगा वो ये है कि मेक योर वीक पॉइंट्स योर स्ट्रॉन्गर वंस। अगर आपको लग रहा है कि आपका वीक पॉइंट है, मेक इट स्ट्रॉन्गर, ताकि लोगों को पता लगे। मैं इस एग्जाम्पल थोड़ी सी सियासत से कोट करता हूँ, थोड़ी सी एग्जाम्पल देने से पहले मैं आई वांट टू अप्रिशिएट कि हमजा वेरी वेल आइडेंटिफाइड पॉइंट, वी ऑल नीड टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस। हम हमारा दिमाग हमारी किसी वीकनेस को, किसी कमी को, किसी इनसिक्योरिटी को जिसको हम छुपा रहे होते हैं, साइड पे रख लेता है, और उसके बाद जब वो कोई किसी पॉइंट पे किसी को दिख जाता है तो फिर वो दैट कन्वर्ट इनटू एंगर, या किसी पॉइंट पे हम उस कोशिश में इतने कामयाब नहीं रहते और लोग उसका हंसी उड़ाते हैं तो भी हम एंगर में चले जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि most of the time we need to work on our own self.
क्यों हमजा? जी मैम बिल्कुल ऐसा ही। आप इसकी थोड़ी मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सियासत से है। आप खान साहब देखें, कहते थे इसको सियासत ही नहीं आती, सो ही मेक हिज वीक पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आप उसको बैन कर लें, जो कर लें, वो एक क्लिक करता है तो मिलियन व्यूज के ऊपर जाता है। ही मेक एवरी स्मॉल इवेंट इनटू अ ह्यूज इवेंट। वो उसने वीक पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इतने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ही इज गेटिंग मिलियन व्यूज। उसने क्या किया, उसने अपने वीक पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। हाउ? उसने लोगों के जो एक शॉर्ट फ्रेज है कि लोगों के उसने जो ना वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। यही चीज ये ना हमजा आप देखिए, अब बात डिलीवर करना है ना, तो ऐसा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, 10 लोग जी आपका मैम, मजाक उड़ाएंगे, 10 आप पे कीचड़ उछालेंगे। लेकिन अगर आप किसी कन्विक्शन जी के मैम, साथ आप खड़े हैं और वो बात आप डिलीवर कर रहे हैं, तो वो लोगों तक एक टाइम आता है कि वो लोगों तक चली जाती है। और यही जो है मैम वो बिल्कुल। बेस्ट पॉइंट आप ये होता है। देखिए 1947 से पहले, जब पाकिस्तान बनने से पहले बहुत से पाकिस्तान ही लोगों ने, मतलब जो उस टाइम बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने ही इस चीज को अपोज किया था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, या पाकिस्तान बन नहीं सकता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत वीक हैं। बट सी द गाय डिड, ही मेक बिल्कुल श्योर कि वो वीक पॉइंट को स्ट्रांग में लेके आए। लेकर आए। सो मुझे लगता है कि जब हम मोहम्मद आतिफ साहब ने लिखा कि रूट कॉज क्या है एंगर की, तो मुझे ये लगता है कि रूट कॉज यही है कि हम किसी चीज को अपने अंदर जो है ना, बहुत जब लेकर अपने लिए सारी वॉल्स खड़ी करके हम उसको अपने अंदर फील करते हैं, तो दैट कन्वर्ट इनटू एंगर। अगर मैम हम यस बिल्कुल ऐसे ही। मैम मैम मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पहले एक चीज को ना बहुत ज्यादा फील करती थी, मतलब मैं खामखा में घर में भी सर पे सवार रखना, लेकिन माशाल्लाह से अब बहुत ज्यादा ओवरकम कर लिया इस चीज को। तो अब काफी मतलब है मेंटल पीस जो है ना मैम, वो बेसिक चीज है कि हम चीजों को इग्नोर करना सीखें। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका सेशन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये क्रेडिट गोज टू हमजा। हमजा थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है सभी साहब को बुला लेते हैं ताकि हम इस सेशन को खत्म करें। सभी साहब आप आ जाएं, इसको आखिरी लाइन में हमजा के साथ मिलकर आप इसको एंड करें सेशन को। हमजा से भी मैं एक पॉइंट लेना चाहती हूँ, सभी साहब से भी पॉइंट लेना चाहती हूँ, उसके बाद कुछ कहते हैं जी सभी साहब। नहीं, it has really been very very well explained by हमजा जी। हमजा, और yes. इन्होंने सारी की सारी जो भी एंगर को प्रिवेंशन और कंट्रोल करने के तरीकेकार हैं, वो अच्छे खासे जो हैं इस सिलसिले में बताए हैं। सभी तो साहब, टू माय माइंड, जी प्लीज। आपका पॉइंट से पहले मैं हमजा के लिए एक पॉइंट कहना चाहती हूँ। हमजा जो है मेरा स्टूडेंट रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। ये स्टूडेंट इस तरह का एंग्री यंग मैन, मतलब इस तरह का कि जो गलत बात कभी सुन ही नहीं सकता था, और हॉकी का बेस्ट प्लेयर, बास्केटबॉल का प्लेयर, और पढ़ाई में इतना अच्छा। और मैंने इसको देखा कि ये टर्न्ड इनटू प्रोफेशनल, और इतना मतलब खुशी हुई अभी सुन के, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये जी तो जनाब ये क्रेडिट गोज टू यू देन, इफ अगर आप उसकी टीचर रही हैं और आपकी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से, तो माशाल्लाह उसमें अपनी एफर्ट्स की तो मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा। जो हमजा की है वो तो डेफिनेटली इसका क्रेडिट जो है दैट शुड गो टू हमजा ऑल्सो। बट जो टीचर का है, आई डू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कितना अपने स्टूडेंट्स पे मेहनत करनी पड़ती है, और उनको जो है फ्यूचर के लिए उनको करियर प्लानिंग और उनको हर लिहाज से इस काबिल बनाना होता है। तो खैर क्रेडिट जो है उसमें तो मैम आसिया आप ही को जाता है। बाकी जहां तक रह गया इसका कि जो हम एंगर मैनेजमेंट को, तो इसमें टू माय माइंड वी हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट। जो मुझे चीज आजकल है कि लोग जो है कोई ऐसा आउटलेट ढूंढें जो कि क्रिएटिव हो, ताकि उनका जो एक पॉजिटिव वे के अंदर एक ट्रैक को फॉलो करें और उसकी कोई आउटपुट हो। और हर लिहाज से मे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर बिजनेस में है तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज वगैरह की वेलफेयर के लिए करना है, और वो सारा कुछ है तो उसके लिए। और इसी तरह वी हैव टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। उसमें हमारा मजहब की इस चीज की तलकीन देता है। आपको पता है कि हम लोग कहते हैं हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद, और हुकूकुल इबाद का कितना है। तो उसमें क्यों इसलिए कहा जाता है कि आपने लोगों को नाराज नहीं होने देना, आपने वो कंडीशन
कंडीशन ही नहीं आने देनी है। हजरत उमर के वक्त का देख लें कि क्या था कि वो कंडीशन ही नहीं आने दे रहे थे कि जिससे वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हों और उनमें एंगर डेवलप हो। तो एवरीथिंग बॉयज डाउन टू द सिस्टम इटसेल्फ, लेकिन कल्चर भी है और लोगों का अपना भी है, पर्सन इंटरेक्शंस, और इसमें एवरीबॉडी इज टू प्ले हिज और हर पार्ट। इसमें कोई एक नहीं है, ये एक यूनानिमस एक किस्म का जो है अपना मिलजुल के भाईचारे में और इसको मिलजुल के जो है मसले को रिजॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई। बिल्कुल ठीक है। तो वंडरफुल पॉइंट सभी साहब आपने दिया कि कोई पर्पस अपनी लाइफ में रखें, फाइंड अ पर्पस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फाइंड सम क्रिएटिव आउटलेट। जी हमजा, खत्म करना है, हमने बहुत लंबा कर लिया सेशन। हमजा जी मैम। जी अब आप मैम जी मैम। जी मैम मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। माशाल्लाह से आपने अभी बताया कि आप हमजा साहब की टीचर हैं, तो रियली मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह से आपने हमजा साहब को कैसा ट्रेन किया है। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लेक्चर इन्होंने दिया। और जिया साहब एक सेकंड लेट मी क्लैरिफाई। हमजा जो है बहुत एक छोटी सी एज में मेरे से पढ़ता था। हमजा ने जो बहुत कुछ अटेन किया है अपनी लाइफ में, ये सब क्रेडिट जो है ये टोटल हमजा का है। लेकिन मैं तो इसलिए बताया फोरम पे बिकॉज बहुत एक बच्चा इवॉल्व होता है और बड़ा होता है और किसी जगह पे पहुंचता है, तो जाहिर है उसमें जो एप्रिसिएशन जो है ना, टीचर कहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा प्लांट है, ये मैंने लगाया था, ये दरख्त बन गया। सो ये दरख्त बन गया माशाल्लाह। अच्छा, हमारे टीचर तो हमें कहा करते थे कि बेटा दरमियाना रास्ता इख्तियार किया करो। अब ये हमजा साहब की जो प्रेजेंटेशन है ये सुनने के बाद मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि वो क्यों हमें कहते थे कि दरमियाना रास्ता इख्तियार किया करो। जी थैंक यू। हमजा जी प्लीज आप अपना एक लाइन में सेशन को फिर हम एंड करते हैं। आप बताएं हमें, फिर हम इसको सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू जिया साहब। जी हमजा। मैं इसको क्लोज यहाँ पे करना चाहूंगा कि अपने आप को कभी भी किसी से कमतर न समझना और अपनी कमजोरियों को कभी अपने पे हावी मत होने देना। सिर्फ इतना याद रखना है कि आपसे मजबूत ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। Wonderful. Thank you, Hamza. God bless you. Thank you, and ma'am. thank you for wonderful audience. Thank you very much. See you on next Thursday with some different person and with the new topic. Ji Bilal. Thank you, ma'am. Ji, Hamza, thank you so much, and Miss Hamza, Asya, thank you so much. and everyone to join this session. Yes, Zia, बोलें। जी सर, हमें कब मौका मिलेगा? क्या हम इसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अभी? आपको मैं कांटेक्ट कर लूंगा मंडे को ज़िया। जी थैंक यू सर। ठीक है, चलें। Thank you everyone, and do not forget to give a review to this session at the end. Thank you, Miss Asiya and Hamza. Okay, thank you very, very much. Allah Hafiz. All the best.